A very good morning to all of you. It's 2nd October today, and Sri Jain Vidyalaya Kolkata, along with the entire nation, is paying tribute to a man who lived humbly, loved humanity, practiced non-violent struggle against a powerful adversary, and ultimately led India to independence. This frail man with a will of iron remains one of the most revered figures in modern world history. Yes, I am referring to Mohandas Karamchand Gandhi. This man holds such a position in Indian independence which is undeniably सुप्रीम। एक बालक अपनी माता से ये जिद कर रहा है कि उसे गांधी बनना है, अतएव उसे खादी की चादर ला दी जाए। अब प्रश्न ये उठता है कि मात्र खादी के वस्त्र धारण कर लेने भर से या फिर रघुपति राघव का गान कर लेने से गांधी बना जा सकता है क्या? गांधी बनने के लिए गांधी के गुणों को अपने चरित्र में उतारना होगा, गांधी के आदर्शों पर चलना होगा, सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ना होगा। गांधी बनना असंभव तो नहीं, किंतु बहुत कठिन अवश्य है। ये बालक और हम सभी कुछ हद तक गांधी बन सकते हैं अगर प्रयास करें तो, और अगर भारतवर्ष का हर एक नागरिक कुछ अंशों तक भी गांधी बन पाए तो भारतवर्ष रहने के लिए स्वर्ग से भी सुंदर हो जाए। आइए सुनते हैं ये हिंदी कविता जिसके माध्यम से गांधी बनने की जिद हम तक पहुंचा रहा है पहली कक्षा का विद्यार्थी। ये बालक विद्यालय के प्राथमिक विभाग का प्रतिनिधित्व कर रहा है। सुनते हैं कविता माँ खादी की चादर ला दे, मैं गांधी बन जाऊंगा। नमस्कार आदरणीय शिक्षक और शिक्षिका महोदय, मेरा नाम हर्षित उपाध्याय है। मैं कक्षा प्रथम का छात्र हूँ। आज मैं गांधी जयंती के शुभ अवसर पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। माँ खादी की चादर दे दो, मैं गांधी बन जाऊँगा। सभी मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाऊँगा। निकर नहीं धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा। माँ खादी की चादर दे दो, मैं गांधी बन जाऊँगा। सभी मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाऊँगा। घड़ी कमर पर लटकाऊंगा, सैर सवेरे कर आऊँगा। माँ खादी की चादर दे दो, मैं गांधी बन जाऊँगा। सभी मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाऊँगा। कभी किसी से नहीं लड़ूंगा और कभी किसी से नहीं डरूंगा। झूठ कभी भी नहीं कहूँगा, सदा सत्य की जय बोलूँगा। माँ खादी की चादर दे दो, मैं गांधी बन जाऊँगा। सभी मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाऊँगा। आज्ञा तेरी मैं मानूंगा, सेवा का प्रण मैं ठानूंगा। मुझे रुई की बूनी दे दो, मैं चरखा खूब चलाऊंगा। माँ खादी की चादर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा। सभी मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाऊंगा। गाँव जाकर वहीं रहूंगा, काम देश का सदा करूंगा। सबसे हंस हंस कर बातें करूंगा, क्रोध किसी पर नहीं करूंगा। माँ खादी की चादर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा। सभी मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाऊंगा। धन्यवाद। Gandhi's physical and moral courage, his willingness to lay his life on the line, and his ability to encourage debate and dialogue even with those with whom he profoundly disagreed. Now, these are the aspects
which compel admiration, adulation, and reverence. Gandhi combined ordinary objects with mass politics. Who else could have used a charkha and khadi as symbols of self-reliance and empowerment? Who else could have led to such a mass agitation with a pinch of salt? His picking up of a lump of salt from the Arabian seashore led to the historic civil disobedience movement. This was Gandhi. But the big question is, do we need Gandhi in today's world? In this age of information and technology, is he still relevant? Now, this question will be answered by Aman Pandey, a student of class 10, representing the secondary section of the school. Aman will present his speech in English. Honorable teachers and my dear friends, I feel privileged to get an opportunity to speak about the greatest leader of all times and the Mahatma as we celebrate his 152nd birth anniversary. In 1915, the Indian National Congress leader Gopal Krishna Gokhale invited a frail lawyer in his late 40s from South Africa to come to India and duplicate his success in fighting injustice and class division. Gokhale also had another motive: to groom this man to take on the mantle of the Indian independence movement. This man was Mohandas Karamchand Gandhi, affectionately referred to as Bapu. Gandhi, the name that echoed the dreams of millions of people, a single entity who bore the burden of a whole nation, an idea that reincarnates every time it is assassinated, an intangible reality, a person who was in the vanguard of India's freedom struggle, an enigma that still fails not to awe us. He was the man who could talk with the crowds and still keep his virtue, or walk with the kings and not lose his common touch. However, it has been quite vaguish to question, do we really need Gandhi in today's world? And it is always being asked with the presumption of the reply being, no, we don't. In the age of information technology, where is the applicability of Gandhi's iconic spinning wheel? In the age of consumption, what is the use of self-control? In this age of social media and instant gratification, there is perhaps no place for ethics, honesty, peace, and non-violence. Or is there? Until the day these values continue to mean something to us or matter to our existence, Gandhi will remain relevant. He, as a human being, may lose his relevance someday, but his legacy and thoughts can never become irrelevant. I would like to quote Dr. Martin Luther King Jr., who said, "If humanity is to progress, Gandhi is inescapable. We may ignore him at our own risk." And today, my heart screams out these immortal words of the noted Hindi poet Sumitra Nandan Pant. मानव ने पाई देश काल पर जय निश्चय, मानव के पास नहीं मानव का आज हृदय। बापू, तुम पर हैं आज लगे जग के लोचन, तुम खोल नहीं जाओगे मानव के बंधन। थैंक यू। नेल्सन मंडेला ने गांधी को द सेक्रेड वॉरियर यानी कि एक पवित्र योद्धा की उपमा से विभूषित किया। गांधी का मार्ग भले अहिंसा का रहा हो, लेकिन थे वे एक योद्धा ही। जब तक जीवित रहे लड़ते रहे, कभी अंग्रेजों से,
तो कभी अपनी व्यक्तिगत लड़ाई। और उनकी ये व्यक्तिगत लड़ाई थी अपनी इच्छाओं से, मोह से, लोभ से, और इसमें भी वो विजेता ही रहे। तभी तो दिनकर को ये कहना पड़ा, लज्जित मेरे अंगार, तिलक माला भी यदि ले आऊं मैं, किस भांति उठूं इतना ऊपर, मस्तक कैसे छू पाऊं मैं। प्रस्तुत है ये हिंदी कविता रामधारी सिंह दिनकर की अमर कृति बापू। प्रस्तुत कर रहा है मयंक राय, प्रतिनिधित्व कर रहा है हमारे उच्च माध्यमिक विभाग का। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य, सभी शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों। मैं मयंक राय कक्षा 11वीं का एक छात्र आज के इस शुभ अवसर पर प्रस्तुत करने जा रहा हूं रामधारी सिंह दिनकर जी की एक लोकप्रिय कविता बापू। प्रस्तुत है कविता। संसार पूजता जिन्हें तिलक रोली फूलों के हारों से, मैं उन्हें पूजता आया हूं बापू अब तक अंगारों से। अंगार विभूषण उनका कि विद्युत पीकर जो आते हैं, ऊंघती शिखाओं की लौ में चेतना नई भर जाते हैं। अंगार हार उनका जिनकी सुनहाक समय रुक जाता है, आदेश जिधर का देते हैं इतिहास उधर झुक जाता है। अंगार हार उनका कि मृत्यु भी जिनकी आग उगलती है, सदियों तक जिनकी सही हवा के वक्ष स्थल पर जलती है। पर तू इन सब से परे, पर तू इन सब से परे, देख तुझको अंगार लजाते हैं, मेरे उद्वेलित ज्वलित गीत सामने नहीं हो पाते हैं। बापू तू वह कुछ नहीं जिसे ज्वालाएं घेरे चलती हैं, बापू तू वह कुछ नहीं दिशाएं जिसको देख दहलती हैं। तू सहज शांति का दूत, मनुज के सहज प्रेम का अधिकारी, दृग में उड़ेल कर सहजशील देखती तुझे दुनिया सारी। मानवता का मर्मी सुजान, आया तू भीति भगाने को, उपदस्थ देवता कोनर में फिर से अभिशक्ति कराने को। तू चला लोग कुछ चौंक पड़े, तूफान उठाया आंधी है, ईसा की बोली रूह, अरे यह तो बेचारा गांधी है। दुनिया ने चाहा प्रश्न करें, क्या कहिए इस दीवाने को, दो बूंद सुधा लेकर निकला है जग की आग बुझाने को। पर तू न रुका, पर तू न रुका, सीधे अपने निर्दिष्ट पंथ पर जा निकला। पद चिन्हों को देखते हुए पीछे पीछे इतिहास चला। मानवता का इतिहास, युद्ध के दावानल से चला हुआ मानवता का इतिहास, मनुज की प्रखर बुद्धि से छला हुआ। मानवता का इतिहास विकल हाफता हुआ लोहू लुहान, दौड़ा तुझसे मांगता हुआ बापू दुखों से सपदी त्राण। पर त्राण कहां, पर त्राण कहां, किस्मत में लाखों भोग अभी तक बाकी हैं, धरती के तन में एक नहीं 100 रोग अभी तक बाकी हैं। पर हो अधीर मत मानवते, पर हो अधीर मत मेरे मन, है जूझ रही इस व्यूह बीच धरती की कोमल एक किरण। अब प्रश्न नहीं यह एक किरण किस तरह द्वंद से छूटेगी, है प्रश्न व्यूह पर इसी तरह बाकी किरणें कब टूटेंगी। जाने कितने अभिशाप मिले, कितना है पीना पड़ा गरल, तब भी नयनों में ज्योति हरी, तब भी मुख पर मुस्कान सरल। सामान्य मृतिका के पुतले हम समझ नहीं कुछ पाते हैं, तू ढो लेता किस भांति पाप जो हम दिन रात कमाते हैं। तू कालो दधी का महास्तंभ, आत्मा के नभ का तुंग के तू, बापू तू मर्त्य अमर्त्य, स्वर्ग पृथ्वी भूनभ का महासेतु। तेरा विराट यह रूप कल्पना पट पर नहीं समाता है, जितना कुछ कहूं मगर कहने को शेष बहुत रह जाता है। लज्जित मेरे अंगार, तिलक माला भी यदि ले आऊं मैं, किस भांति उठूं इतना ऊपर, मस्तक कैसे छू पाऊं मैं।
ग्रीवा तक हाथ न जा सकते, उंगलियां न छू सकती ललाट। वामन की पूजा किस प्रकार पहुंचे तुम तक मानव विराट। धन्यवाद।